इमेजिन एक रात डेंस फॉरेस्ट में आपकी कार चल रही है और आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, बट सडनली द कार ब्रेक्स परफेक्टली बिफोर हिटिंग अ स्ट्रे डॉग। यू आर शॉक्ड, वेट, कैसे देखा इसने? What if your car could see better than you, even in total darkness? Sounds like sci-fi, right? But for self-driving cars, it's a real science. बहुत लोग सोचते हैं autonomous cars बस कैमरा से देखते हैं, but the reality is cameras are just the eyes. Behind them is a whole network of sensors and an AI brain that thinks faster than a human. आज हम एक्सप्लोर करेंगे how self-driving cars actually see, think and decide. Hi, welcome to my channel. Here you will get answer of all your curiosity. Curiosity जो आपके सामने हमेशा थी, but you always ignore it. साइंस और फिजिक्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। Meet the car's first superpower, LiDAR. That small spinning device on top, it's not decoration. It's the car's laser eye. LiDAR millions of laser beams send करता है every second. हर एक बीम जाके ऑब्जेक्ट को हिट करती है and then reflect back to the car. और कार को बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। इस तरह से कार के पास एक 3D मैप बन जाता है आगे के रूट का, जो कार को बताता है कि दूसरी कार कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है, या फ्रंट पे कोई वॉल है या कोई अदर ह्यूमन है। एंड दिस इज हाउ लाइडर वर्क। थिंक ऑफ अ बैट फ्लाइंग इन टोटल डार्कनेस, यानी बैट से पहले उसकी अल्ट्रासाउंड ट्रैवल करती है, और अगर उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, इट विल हिट दैट ऑब्जेक्ट एंड कम बैक टू इट। उससे बैट को अंदाजा होता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, क्या उसका साइज है, एंड अकॉर्डिंगली वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। सपोज कोई वॉल है उसके पाथ में, तो उसको वो पहले ही पता चल जाता है, अकॉर्डिंगली इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इसे हम कहते हैं इकोलोकेशन, जो बैट यूज करते हैं। LiDAR works on the same idea, but instead of sound, it uses light type pulses. It can even measure the distances in centimeter accuracy. एक सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी कुछ है, LiDAR can take that record. But here is the twist. LiDAR can struggle in heavy rain or fog because जब वो हिट करके ऑब्जेक्ट को हिट करके रिफ्लेक्ट होता है, because of the rain there is water droplets in the atmosphere. और वो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से वो सिग्नल, वो डायरेक्शन रेंज अपना चेंज कर देता है। बिकॉज ऑफ दैट एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लाइन्स कार को कुछ पता नहीं कर पाता। ऐसे वेदर में क्या सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे बिहेव करती है? Well, here comes the another hero. When visibility drops, radar steps in. जब आप क्लियरली नहीं देख पाते हो, तब रेडार अपना काम शुरू करता है। It doesn't uses light, ये रेडियो वेव यूज करता है that can travel through fog or darkness. Radar tells the car how far something is and how fast it's moving. यानी कार को ये बताता है कि सामने वाली चीज कितनी दूर है और किस स्पीड से मूव कर रही है। That's how adaptive cruise control works. ये वही सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है जब कोई कार आसपास आ जाए, एंड स्पीड अप व्हेन द रोड इज क्लियर. एंड फॉर द क्लोज-अप सेंसिंग, ultrasonic sensors take control. The small sensors near the bumper detect the object during parking or slow movement. पार्किंग के टाइम ये छोटे सेंसर्स ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करते हैं. They are the reason your car goes beep beep when it's near the wall. Together, LiDAR, radar, and ultrasonic sensor gives 360-degree awareness of the world. जैसे कार को सुपर ह्यूमन सेंसर्स मिल जाते हैं. Each one covers what other can't. So, with all these high-tech sensors,
Do self-driving cars really need cameras? Well, you will be surprised to know this. Cameras may seem simple, but in self-driving cars, they are critical. Because cameras detect colors, shapes, traffic lights and signboards, जो LiDAR और radar clearly नहीं देख पाते. But cameras alone aren't enough. They feed data to the real hero, which is the AI brain. Deep learning algorithms analyze the millions of patterns, जैसे कार कैसे टर्न लेती है, कैसे ब्रेक अप्लाई करना है, जो रोड के बोर्ड्स एंड के साइंस की क्या मीनिंग है. That comes sensor fusion. जब सब सेंसर का डेटा AI कंबाइन करता है तो कार को एक हाइपर एक्यूरेट रियल टाइम 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग मिलती है. Exactly like a human brain combining eyesight, hearing and experience. Now, even with all this intelligence, self-driving cars still face the real world chaos. Humans जो है बहुत unpredictable है. Roads are messy and the rare situations or edge cases still confuse AI. Plus, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? द ड्राइवर, द कंपनी और द कोड? But the progress is unstoppable. नया solid state LiDAR cheaper and smaller हो चुका है. AI is learning from millions of driving miles, and companies are testing level 5 autonomy. Car that don't need human at all. वो कार जिसको ह्यूमन की जरूरत है ही नहीं. So, can a car one day think better than us? क्या कार हमसे भी ज्यादा अच्छे से सोच सकती है और फैसला कर सकती है? Maybe, maybe not. शायद और शायद नहीं. But at present, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हमारे ड्राइविंग का पैटर्न है उसमें एक चेंज, एक रिवॉल्यूशन जरूर ला रही है. जब कोई ऑटोनोमस कार आपके पास से साइलेंटली गुजरे, रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट ड्राइविंग, इट्स परसीविंग, थिंकिंग एंड लर्निंग. कार सिर्फ मूव नहीं करती, वो अंडरस्टैंड करती है. और शायद एक दिन ये ऑटोनोमस कार, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो रोड को हमारे लिए हमसे भी ज्यादा सेफ कर दे. Remember, technology isn't replacing humans. It's redefining what we are capable of. टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रही, बल्कि वो हमारे लिए, हमारी सर्विस के लिए और बेटर हो रही है. एंड रिमेंबर, क्यूरियोसिटी नेवर एंड्स, क्योंकि हर चीज के पीछे एक साइंस होता है और हम यहाँ इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे उसी साइंस को डिकोड करते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.